بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ خریدار کس ارادے اور نیت سے خرید رہا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ شیئرز کی فی نفسی بیع و شراء کے قابل ہے یا نہیں۔ جب یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ شیئرز قابل بیع و شراء ہیں، شیئرز کی بیع دراصل کمپنی کے اثاثوں میں متناسب حصے کی بیع ہے، تو خرید و فروخت جائز ہوگی، خواہ کسی بھی نیت سے ہو، خواہ شیئرز اپنے پاس رکھ کر سرمایہ کاری کے لیے ہو یا قیمت بڑھنے پر بیچ کر نفع کمانے کے لیے ہو۔ کسی چیز کو قابل بیع و شراء ماننے کے بعد محض نیت کی بنیاد پر جواز و عدم جواز کی تفریق کی کوئی فقہی وجہ نہیں۔ ہاں، البتہ بیع و شراء کی شرعی شرائط کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اور ان شرائط کی رعایت کرنے سے سٹہ بازی کا سدباب خود ہی ہو جائے گا۔ مولانا نے ذکر کیے ہیں اسی میں شیئرز کی تجارت کا مسئلہ ہے۔ جب ایک آدمی کسی کمپنی سے شیئر خریدتا ہے تو اس کی جو نیتیں ہوتی ہے، عمومی جو نیت ہوتی ہے وہ خرید کر بیچنے ہی کی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس قسم کی چیزیں خریدنے کے بعد ایسے ہی رہتے ہیں اور ہر سال جو کچھ آتا ہے ڈویژن وہ لیتے رہتے ہیں، اور پھر جب کبھی ضرورت پیش آئی زندگی میں تو اس کو بیچتے ہیں۔ جو اپنے پاس بھی رکھتے ہیں بیچتے نہیں ہیں، ان کے سلسلے کا تو یہی ہے کہ ایک چیز خریدی ہے اور پھر وہ ایک مدت کے بعد بیچ رہا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے خریدی اور صبح میں لیے شیئر اور دوپہر کو بیچ دیے، کمپنی میں ابھی کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں آیا، یعنی کمپنی یا مثلا ایک مثال لے لیجیے کہ رات کو کمپنی بند ہوئی ہے، ایک آدمی نے رات کو شیئر لیے کسی کے 12 بجے 1 بجے یا صبح میں لیے اور فوراً اس کے بعد بیچ دیے 2-3 گھنٹے میں یا 1-2 منٹ کے بعد بیچ دیے، تو 2-4 منٹوں میں 2-4 گھنٹوں میں کمپنی میں تو اتنا پروڈکٹ نہیں ہو جاتا ہے، کمپنی کا مال اتنی بڑی قیمت نہیں ہوتی۔ اس بنیاد پر شیخ صدیق ذریعہ اور اس قسم کے جو دوسرے علماء ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو اس قسم کے شیئرز ہے 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں بیچ دیے تو کمپنی کا تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا اس سے۔ اگرچہ شرعی نقطۂ نظر سے بازار میں کوئی چیز آپ نے لا کر خریدی اور خرید کر فوراً ہی آپ بیچ دیں زیادہ قیمت پر تو بھی کوئی اشکال نہیں ہے، کم قیمت پر بیچو تو بھی کوئی اشکال نہیں ہے، آپ خریدو بیچو صبح سے شام تک کرتے رہو تب بھی شریعت کی اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن شیئرز کا مسئلہ تھوڑا نازک ہے، جیسے کل آپ کو کہا کمپنی اچھی طریقے سے چل رہی ہے، وہاں کاروبار میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، کمپنی کا جو مال تیار ہو رہا ہے اور ایکسپورٹ امپورٹ کی جو سپلائی مال ہے وہ بھی جاری ہے، کمپنی اپنے نفع کی رفتار کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن ملکی حالات تو ایسے آ گئے، کوئی سیاسی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ کبھی مثال دی تھی انڈین کرنسی میں گڑبڑ آئی اور جہاں سے وہ نوٹ کا کاغذ خریدا جاتا تھا اس کمپنی کے اندر، تو اب جتنی بھی کمپنیاں ہوتی ہیں یہ اپنی ذاتی نہیں ہوتی ہے، یہ لوگوں سے شیئر یعنی لوگوں سے روپیے لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر لوگوں کے شیئر یعنی دوسروں کے پیسے پر دھندا کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں فائدہ یہ ہے کہ اس دھندے میں ہم بھی شریک، تو ہمارے پاس اتنا بڑا سرمایہ نہیں ہے، ابھی چھوٹی رقم نہیں ہے، ہم نے 50,000 1 لاکھ روپیہ لگا دیا، اب وہ اربوں روپیوں کی کاروبار ہے، ہمیں اتنے کے شیئر ملے تو ہمارے شیئر کی قیمت بڑھتی ہے۔ تو شیئرز کی قیمت کا بڑھنا اور گھٹنا یہ عام حالات میں تو کاروبار کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی انفرادی طور پر چند آدمی مشترک کاروبار کر رہے ہیں اور ان کے کاروبار میں بھی نفع ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے، لیکن شیئرز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ عارضی حالات بھی پائے جاتے ہیں، کمپنی میں کوئی نقصان نہیں ہوا پھر بھی نقصان ہوتا ہے، کبھی الٹا ہوتا ہے کمپنی میں کوئی پروڈکٹ میں اضافہ نہیں ہوا لیکن اس کی کمپنی کے شیئر مارکیٹ میں بڑھ گئے۔ اگر ایسا کم ہوتا ہے عموماً انہی کمپنیوں کی شیئر کی بازار میں ویلیو بھی ہوتی ہے، اس کی خریدنے کے لیے لوگ تیار رہتے ہیں جن کے کاروبار کا نفع بھی اچھی مقدار میں ہوتا ہے۔ ٹاٹا والا ہے، اب اس کی ایک پروڈکٹ اس کی کمپنی ہے، 200-300 سے اوپر کمپنیاں ہیں، ہر ایک کمپنی کا الگ الگ کاروبار ہے، لیکن ٹاٹا اس سے پہلے مارکیٹ میں تھا کہ ٹاٹا کی مارکیٹ میں آتی تھی تو لوگ کسی بھی قسم کے شیئر ہو خرید لیتے تھے، حتیٰ کہ ٹاٹا نے ایک مرتبہ یہ بھی عمل کیا، مولانا قاضی مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ان سے کہا کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں تو ہندوستان میں 20-25 کروڑ مسلمان ہے، یہ اپنا کاروبار شیئر کمپنیوں میں اس لیے نہیں لگا رہے ہیں کہ ان کو اطمینان نہیں ہے، تو اگر آپ شرعی طریقے کے مطابق کاروبار کرو تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی اپنا روپیہ لگائے اور 20-25 کروڑ کتنے ارب ملک ہو گئے، سعودی جیسے 20-25 ملک ہو جائیں گے تب یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے برابر ہوں گے، اتنی
बड़ी तादाद इस मुल्क में है। तो टाटा वाले ने 1 साल ये किया और यही जो हमारा शर्ई तरीका है कि जितनी चीज़ ली लोगों के पास से, यानी जितना रुपया लिया उस रुपये को इन लोगों में ही लगाया। जो नफ़ा हुआ इससे उस नफ़ा की मिकदार बहुत ज़्यादा हो गई। तो ऐसा हुआ कि साल ख़त्म होने से पहले पहले तक लोगों की डिमांड उसकी तरफ बढ़ गई, चाहे मुस्लिम की। लेकिन दूसरी निगाहें भी लगी हुई है, इजराइल और बनिए ये कभी भी इस्लामी कारोबार को चलने नहीं देंगे, इसलिए कि इस्लामी कारोबार सूद के बगैर चलते हैं, सूद के बगैर चलते हैं और वो सूद के बगैर मस्जिद से पानी के बगैर जिंदा रहें। ये कौमें इसलिए कि वो जिंदा नहीं रह सकते। तो दबाव आया और दूसरे साल टाटा वाले ने 15 छोड़ दिया। लेकिन हुआ ये था कि 10 रुपये में खरीदा हुआ शेयर 40 रुपये में बिक रहा और उस वक्त ये शेयर्स के बिकने वाले के टाटा के बिकने वाले शहरों में सबसे ज़्यादा है। इसलिए कि इन्होंने एक ट्राई की, उसूल बतला दिए थे इनको कि इस तरीके से अगर आप कारोबार करते हैं तो मुसलमान आएंगे। अब उस कारोबार में ये होता है, एक तो हम लोग शेयर्स लेते हैं। अब मसलन 1000 रुपये की भी शेयर लिए, 10,000 की भी लिए, सबकी शेयर्स की कीमत मसलन 10 रुपये है, 12 रुपये, 10% कंपनी के होते हैं। उसके बाद वो कारोबार करते हैं तो इनकी कीमत बढ़ती है, तो 15 रुपये 20 रुपये है, तो वो ज़्यादा इतनी कीमत बढ़ती नहीं। इसके पीछे बहुत सारी वजूहत है। कारोबार का जो सिस्टम है, एक तो उधार लिया है, सूद पर लिया है, तो यकीनन कंपनी को दूसरी कंपनी को या दूसरी बैंक को क्या करना पड़ेगा, सूद देना पड़ेगा। फिर एक उसमें खाने पीने के तरीके, तो हमारे तक आते आते 200, 500, 800 रुपये हमको डिविडेंड मिलता है। लोग इस पर राजी है, डिविडेंड वाले जो आराम से बैठे हुए हो और या गरीब है लेकिन कोई कारोबार कर नहीं सकते, मुलाजिम पेशा है, तो जितना भी रुपया हुआ हिफाजत की शक्ल में था, इसके बजाय कारोबार की शक्ल में, लेकिन हिफाजत में पूरा माल वापस आएगा और कारोबार में नुकसान हुआ तो अब इसलिए कल जो आपको कह रहा था कि सेविंग अकाउंट में रुपया हम जमा करवाते हैं तो बैंक अगर यही रुपया कारोबार में लगाए और हमें भी इसमें शरीक करे तो फिर ये नफ़ा मिलेगा। लेकिन दूसरा भी है कि रुपये अगर नुकसान में गए तो नुकसान भी जाएगा, जबकि बैंकों में ये नहीं होता है। बताइए किसी बैंक से कितने रुपये चले जाए, आपके जो रुपये हैं वो आपको सलामत नहीं मिल जाए कि बैंक ही दिवालिया हो जाए तो फिर हाथ नीचे कर दो। लेकिन ऐसे वाक़यात शाज़ नादिर होते हैं आम उन मुल्कों में जहाँ कारोबार चलता रहता है। उन मुल्कों में हालात नाखुशगवार है, सियासी हालात, मुल्की हालात, वहाँ पर ये सब चीज़ें होती है। अब शेख सिद्दीक़ ज़लील का ये कहना है कि जो लोग अभी ले रहे हैं और फिर बाद में बेच रहे हैं, ये कंपनी के कारोबार में कुछ नहीं होता है इतना तबादला, यानी नफ़ा में जो सिर्फ ये कि शेयर 25 रुपये के थे अचानक 50 रुपये हो जाए, दुगना इसका बात, तो इतना कंपनी में तो कोई इस तरह का हुआ नहीं है प्रोडक्ट में और नफ़ा में, और अचानक ये हो जाता है। तो ये एक किस्म का गोया अंदाज़ा होता है। लोग ये समझते हैं कि फलानी कंपनी के शेयर कितने में बिकेंगे तो इस बुनियाद के ऊपर उसको ले लेते हैं। तो ये जो 2 घंटे 3 घंटे में या आधे घंटे में 2 मिनट में भी होता है, इसके ऊपर बैठते हैं इंटरनेट के ऊपर, जैसे ही भाव बड़ा फौरन बेच देते हैं, जो कुछ आ गया, फिर कम हुआ किसी दूसरी कंपनी का तो उसको खरीद लिया, इस तरीके से बैठे। लेकिन हमने फिर भी देखा कि बहुत माहिर हमारे यहाँ से कई दोस्त हैं ग्रुप में, लेकिन वे एकदम करोड़पति के बजाय रोडपति हो गए, कर लिया और फिर उसके बाद अचानक भाव डाउन हो गया, गए इतने शहर कितने रुपये गए आपके, नफा तो साइड पर रहा, नुकसान के अंदर आप आ गए इस तरीके से। और फिर ये हरियो दुगारी बमरूर ये चीज़ ऐसी होती है कि इसके पीछे पढ़ने वाले फिर ठहरते नहीं है, शायद छंदा आखिरी क्या आ गया तो इसी में से जीत गए हम, दुगारी लोग जुआ खेलने वाले यही करते हैं। इस तरीके से कुछ चीज़ों का जुआ जैसी शक्ल हो जाती है, लेकिन इसको 100% जुआ नहीं कहेंगे। शेख सिद्दीक़ ज़लील कहने के अंदाजे से आप ये चीज़ें हो रही है, इसलिए जायज़ नहीं। उन्होंने जो बुनियाद उसकी बताई हज़रत मौलाना तकी साहब उस पर नफी कर रहे हैं। मौलाना तकी साहब ये नहीं कह रहे हैं कि फजीलत है इसकी कि आप शेयर अभी सुबह में खरीदो तो 2 घंटे के बाद बेच दो, सवाब ज़्यादा मिलेगा। इसलिए अरदत तकी इस किताब के जवाब में कुछ लोगों ने किताबें लिखी थी, छोटे छोटे जुज़ियात लिखे थे, और वो इंग्लैंड में हमारी मुलाकात भी उनसे हुई, हमारे पास पता नहीं था, हम तो मसले पर बात कर रहे थे और वो मुफ्ती साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा थे, उस इदारे के मुहतमिन थे जहाँ से वो किताब छपी थी अरदत तकी, इन्होंने मैंने ये लिखवाई। फिर हमने थोड़ी गुफ्तगू भी उनसे की उस मसले के अंदर, लेकिन खैर उनकी बातों में कोई रब्त नहीं था, कोई जोड़ नहीं था।
गाती खलिश की मुफ्ती साहब से कुछ होगी, कभी कभार कुछ लोग आपसे फारिग होने के बाद किसी इदारे में जाएंगे या किसी गांव में जाएंगे तो कुछ लोगों को आपसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन कोई वजह जाहिर में नहीं है, लेकिन होती है। उसको शौक ही होता है कि उससे दुश्मनी रखते हैं, तो कुछ लोग चाहने वाले भी होंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से उनकी बातों में कोई दलीलें नहीं थी, बात इधर उधर की थी। मैं उनसे उम्र में बड़ा हूँ, तो कोई दलील हुई, उम्र में तो फिरौन भी बड़ा होगा किसी से। बहुत सी दलीलें की, उसमें एक दलील उन्होंने ये भी की, मैंने कहा ये मैयार ही नहीं है लिखी दुनिया में जानने का है। तो इनका कहना है कि कियास आराइयों की बुनियाद पर खरीदो फरोख्त की जाती है, सट्टाबाजी का रास्ता। सट्टे में यही होता है उमूमन, जो लोग जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, तो यही तो हो रहा है। इन्होंने पैसे दिए 100 रुपये दिए, हाथ नहीं आया तो कुछ नहीं आया, और आ गया तो 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। तो ये आया कहाँ से है, किसका आया? एक दूसरे आदमी का रुपया आपके पास आ गया बगैर मेहनत के आया। इसीलिए कुरान ने उसको मैसिर कहा है, दूसरे से वो हासिल हो रहा है। तो ये मैसिर, उसमें यही होता है। शेयर मार्केट में भी कभी कभार इस तरीके से सट्टाबाजी का अमल हो जाता है। जाहिर में तो उसकी पुष्ट पर वो बगी है और आपके पास पैसे हैं, समझ भी है। वहाँ जुए में तो ये चीज़ नहीं होती, वहाँ तो पैसे दिए और सामने कुछ नहीं आ रहा है, आ गया तो पैसा ही आया और नहीं आया तो गए। इसलिए पैसे से पैसा का तफावत होता है, वहाँ तो सीधा। यहाँ ये नहीं हो रहा है। या अगर कोई इनाम, कोई दूसरी चीज़ भी मिल रही हो, तब भी तकाबुल के लिए व्यय नहीं हो रही हो। आपने पैसे दिए कंपनी को, अगर आपका नंबर लग गया और आपको रुपये मिल गए। हमारे गाँव के एक साहब यहाँ कारोबार करते थे, तो उन्होंने छोड़ दिया, दारुल तबलीग में लगे, वो मेरे साथ स्कूल मदरसे में पढ़ते थे, तो उनकी दुकान की फ्रीज वगैरह है, और उसके ऊपर इन्होंने वहीं पर बीच के अंदर एक छोटा सा स्कूटर रखा हुआ है, और कूपन लेते थे लोगों कि हमारे पास से आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो कूपन ले जाओ, इस कूपन के नंबर अगर आ गए तो स्कूटर आपको मिल जाएगा। कूपन में नंबर, अब किसी का तो नंबर लग जाता था, लेकिन वो इतने बेवकूफ़ नहीं होते हैं कि अपने वसूली से ज़्यादा ही दूसरों को रुपये दें। तो मैं गया इत्तेफाक से चीज़ खरीदने के लिए, वहाँ देखा कि ये है, मेरा दोस्त है, मैंने इनको कहा कि सही तौर पर तो अदम जवाज़ का तो फतवा नहीं देगा, इसलिए कि आप तो लोगों को दे रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन आप कीमत में इजाफा कर देते हैं। जब आपने स्कूटर लिया और यहाँ रखा है 25-30 हज़ार का उस वक्त था, तो मैंने कहा 25-30 हज़ार का पहले से इंतजाम आपने नफ़ा में मिकदार बढ़ा दिए, और जायज़ भी है नफ़ा में मिकदार, लेकिन बज़ाहिर तक़वा के खिलाफ मालूम है। आपकी दुकान पर लोग आ रहे हैं स्कूटर के लिए, यानी ज़्यादा खरीदार आएंगे कि जिनको ने कदर रोटी लागी जाए, तो एक तो वो शक्ल है, वो सीधी खरीदो फरोख्त ही हो रही है चीज़ों की, लेकिन बीच में ये चीज़ रख दी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने वाले आए। उन्होंने फिर उसके बाद उठा भी लिया उसको, तो अदम जवाज़ का फतवा नहीं दिया था, लेकिन ये क्या है, आपकी कमाई के अंदर आप लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं, तो एडवर्टाइज हो ही रही है। एडवर्टाइज में लोग लाखों रुपये खर्च करते हैं और झूठी होती है, इसीलिए तो अखबार वाले लिखते भी है या टीवी वाले भी खबर देते हैं, ये कहते हैं कि इसके अंदर जिम्मेदार नहीं है। मीडिया वाले भी यही, अब नेट के ऊपर भी अब यही आ रहा है कि इन्होंने हमको रुपये दिए हैं इश्तिहार के लिए, तो हमने साबुन, अब आपने वो साबुन इस्तेमाल किया, उनका में एक साबुन इस्तेमाल होता था हमारे, तो उसके ही करीब के गाँव के एक साहब वहाँ फैक्ट्री थी, तो कारियों को ये हुआ कि इससे दौरे हो जाते, तो इन्होंने उसको खरीद लिया। अब वो सही होता है या नहीं वल्लाह वालिम, है जो भी। तो इस तरह की कई चीज़ें चलती है। तो शेख सिद्दीक ज़रीन का ये कहना है कि मिन वजहीन, सत्ता में जैसे एक चीज़ ली, खरीदी बेची, खरीदी बेची, इस तरह का चलता है और बगैर रुपयों के सामने वाला फ़ायदा उठा लेता है, तो यहाँ आप अपने रुपये को इस तरह ही लगा रहे हैं। 100 रुपये लगाए, 110 रुपये मिल गए, फिर किसी और कंपनी में आपने लगाए 115, यानी 5-5 मिनट में 2-4 मिनट के अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं, तो आप अपने रुपये पर मेहनत नहीं कर रहे। मर्दों के लिए सोने की जो हुकूमत आई है, इसकी वजह हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद मियां रहमतुल्लाह अलैह तालीमुल इस्लाम में 12वें हिस्से में, बहुत सारे हिस्से हैं, तालीम इस्लामी निकल गया, इस्लामी तालीम आई, खैर जो भी हो, तो उसके अंदर इन्होंने इसकी वजह ये लिखी कि इस्लाम रुपये को एक जगह रखना नहीं चाहता, रुपये को घुमाना चाहता है। औरतों के लिए तो कुरान ने खुद फरमा दिया, वो औरतों की सिफत ही है, इसलिए शादी के बाद नई डिजाइन आएगी तो तुरवाती ही रहेगी सोना, मौलाना हो गए, मुफ्ती साहब हो गए, कुछ न कुछ तकाजे करती रहेगी, बातें इसी दलीलें होगी, तो
शैतान से हिस्सा मिला है। भाई शैतान है नहीं, वो दूसरे एतबार से, लेकिन ये है। तो मर्दों को जो मना किया गया इसकी वजह यही है, कई अगर सब लोग अपने पास सोना ही रखते रहे तो मार्केट में कोई चीज़ खरीदो फरोख्त नहीं होगी। जिसे लालच दी जाती है अभी इस वक्त भी कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित सोना है, खरीद लो इसकी उसके, और इस तरीके से अपने रुपये को महफूज करो। लेकिन ये देर पा नहीं, फिर मुल्क का पहिया चलेगा नहीं कारोबार का। सब लोग अपने घरों के अंदर क्या कर ले, सोना लेके बैठ जाए तो मार्केट में तिजारत कौन करेगा, गेहूँ की ने दवा दी। तो इस तरफ होता नहीं है। और वो तो फिर ऊपर इस्लाम ने औरतों के लिए तो जीनत है इसलिए उसको बाकी रखा, लेकिन उस पर 40 लगा दिया है। नहीं सोना, एक साहब आए रमजान में 2-3 साल पहले और ये कहा कि मेरे पास तो इतने रुपये नहीं है, मेरी बीवी के पास 30 तोला सोना है, तो मैं क्या करूँ? 20 साल तक 40 साल जकात देते रहो तो पूरा हो जाए। 40 साल के बाद वो सोना खत्म हो जाएगा। उसको कारोबार में लगाओ, चाहे बीवी के नाम से लगाओ, चाहे बीवी को कहो कि तुम ही खुद अपने नाम से कोई प्लॉट खरीद ले या कोई चीज़ ले मार्केट के अंदर, और इससे प्लॉट खरीदेगी तभी जकात पाएगी। लेकिन कोई कारोबारी होकर नफ़ा भी मिले। सोना तो घर में पड़ा रहेगा, नफ़ा उसका नहीं मिलता है, और जो मिलता है उसका शरीयत एतबार मिलता है। जो मिलेगा यानी ये होता है कि आपने 10 साल तक सोना घर पे रखा, अब उसके बाद सोने की कीमत 25,000 से 40,000 हो गई। ना नहीं करेगी इस्लामी शरीयत की, ये जायज़ नहीं। लेकिन ये रखना पसंदीदा नहीं समझा गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सोना रखना नाजायज़ है, समझ रहे हैं, और उससे नफ़ा कमाना, लेकिन सिर्फ उसके ऊपर बुनियाद बना दी जाएगी तो दूलतम बैनल और दुनिया भी होगा और अवाम उन्नास की ज़रूरियात और कोई मुल्क इस पर चलता भी नहीं। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सोना खरीदा जाता है, लेकिन इसके बावजूद मुल्क का कारोबार दूसरी सारी चीज़ों का चलता है तो मुल्क चल रहा है। तो अब बज़ाहिर शक्ल ये बन रही है कि जैसे एक सट्टा खेलने वाला यहाँ लगाया वहाँ लगाया और रुपये ले रहा है, ये भी बगैर किसी मेहनत के। इस रुपये पर मेहनत नहीं हुई। आपने 100 रुपये आपके पास है, आपने शेयर खरीदे, 110 रुपये आपको मिलकर, मिसालन कह रहा हूँ, वहाँ इतना नहीं होता है, 90 चौकी रकमें होती है। फिर हर को आपको दूसरे का पता चला तो आपने वहाँ 110 रुपये लगाए, अब आपको 125 मिले, आपने लगाए। ये अलग बात है कि वहाँ लगाने के बाद नफ़ा भी हो सकता है, नुकसान भी होता है। ज़रूरी नहीं कि नफ़ा ही हो। आपने खरीदा शेयर और फौरन उसके बाद उसकी कीमत क्या हो गई। इसलिए जो लोग सोना शेयर का कारोबार करते हैं वहाँ भी धन हो गया तो फौरन बात पूरी हो गई। इसी तरीके से फॉरेन करेंसी में भी यही होता है। आप किसी को ये कहो कि मैं शाम को आपसे कारोबार करूँगा, अभी मुझे रुपये दे, अभी मुझे पाउंड दे दो, तो वो नहीं देगा। बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुक है तो फिर भाव तो क्या कर ही देगा कि अभी इस वक्त ये भाव है, आपको ये मंजूर है तो मैं अभी देता हूँ कि चाहे आपसे शाम को वसूल कर लूँ। सौदा तो हो गया, उधार रहा, वो जायज़ है कि ना जायज़, अरब उलमा उसको जाने। हिंदुस्तान पाकिस्तान बर्रे सगीर के उलमा ने सोने को, इस किस्म की कारोबार को, शेयर की भी और दूसरे रुपये पैसे समझ को, करेंसी को हमने उनसे नाफिका के हुक्म में रखा है, उसको सोने के हुक्म में नहीं रखा है। याद रखा जाए, अरब उलमा उसको सोने के दर्जे में इसलिए बेशर्त की हुकूमत कहते हैं, इसलिए हवाले के दर्जे ही नहीं हो सकते। हवाले एक जगह यहाँ रुपया लेने, दूसरी चीज़ वहाँ है, करेंसी दूसरे मुल्क की वहाँ है, वो वहाँ किसी को देता है, आया दुबई, पूरी दुनिया का सारा सफाया जो होता है, पूरी दुनिया की जो इधर उधर के लेन देन के मसले जो होते हैं वो सब दुबई में हल होते हैं। इंटरनेशनल इसी तरह का वो कारोबार कर रहा है। अभी जो पकड़े गए रुपये अफगानी फौजियों के पास से, तो उसका सुराग लगाया, ये आए कहाँ से, इंडिया ने दिए, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तालिबान और पाकिस्तान वाले, लेकिन आए कहाँ से? तो आया एक मुल्क का नाम इस्लामी, दुबई और कौन सा मुल्क, वहीं से सारा होता है। उनको जो खुद नफा लेना है उन्होंने तो किया, वहाँ से रुपये ले लिए और इसके बदले में सामने वालों को अफगानी लिया या पाकिस्तानी करेंसी की, बीच का जो नफा है वो इन्होंने कमा लिया। लेकिन एक जरिया बने वो दो मुल्कों के दरमियान कितना फैला फसाद का। ये सब इजराइल की बरकतें और अफ्रीका के इस्तीफादे यही होंगे, तो दुबई वाले यही करेंगे। तो सिद्दीक का जलील साहब की बात मिन वजहीन तो सही है कि एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक ये करता रहता है, लेकिन चूंकि वो करता है तिजारत के अंदर, इसलिए मौलाना मुफ्ती फकीह साहब फरमाते हैं कि उस कारोबार को आप न देखो, अंदाज़ा लगाया जा रहा है, तो कारोबार में भी तो रात दिन अंदाजे हैं। मार्केट में से आपने कोई चीज़ खरीदी, आपको अंदाज है कि इस साल गेहूँ की फसल कम हुई है, तो
तो आप गेहूँ ले लेते हैं, ताकि लोग ये करते हैं, या फसल ज़्यादा हुई है तो उसको नहीं लेंगे, उसका नफा कम मिलेगा। तो रात दिन इस तरीके से चीज़ों के अंदर कारोबार में कोई भी आदमी कोई भी चीज़ खरीदेगा, कारोबार करने वाला, एक तो ज़रूरतमंद आदमी है, उसको ज़रूरत है तो जो भी कीमत होगी उसको बेचारा मार्केट में जाकर ले लेगा, ज़रूरत की बात है। तहसीनियात नहीं, अब तो ज़रूरत को भी तहसीनियात को भी ज़रूरत में लोगों ने भी लिया है, तालिब इल्मों ने भी ये किया है। अपनी ज़रूरत की चीज़ रोकने से ज़्यादा बढ़कर कोई नहीं है। भूख तालिब इल्म के दौर में यही असल मसला होता है। लेकिन देखते हैं कि यहाँ गलती बन रही है या वहाँ कैंटीन में जा रहे हैं, इसको क्या जवाब दे इसका? अभी रोकला पेपर पे खा लो, जो भी खाना हो जिस तरह भी हो, तो आदत डालोगे तो सब बढ़ जाएगा। हमारे हमारा सब तंकारी और में एक पेट में दोनों साथ देते थे 8 साल तक, हमको पता नहीं था कि हमने कभी नमक डाला कि नहीं डाला, लेकिन दूसरे लोगों ने बाद में कहा कि समझ बने नहीं कुछ नहीं, वो नमक था बाजू में ही पड़ा हुआ, सब कुछ पड़ा हुआ, लेकिन बिस्मिल्लाह बोल के उनकी ऐसी लगी कि खाना खा लिया, बस उसके बाद बगार में बगार सब बिगाड़ नहीं होता था। सीधा जो आया वो बिस्मिल्लाह बोल के, और वहाँ की रोटी आज भी कोई फर्क नहीं है, वही साथ की चाय और कलाई दोनों के दरमियान परसों से कोई फर्क नहीं। वहाँ तो खैर आदमी बदलते भी है, बनाने वाली हैं, पूरियाँ थी, मालूम नहीं मुसलमान है कि कौन, लेकिन कोई फर्क नहीं, कोई भी आए। तो शेख सिद्दीक अज़हरी की बात बिन वज़ीर सही मालूम हो, लेकिन बुनियादी तौर पर कारोबार, अब ये दो चीज़ें अलग अलग है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कपड़ा धोने के लिए जा रहे थे, किसी ने कहा कि आपके नज़दीक कोई जायज़ है, कबीला होगी खुदा होगी तो बिदा होगी, इससे कम था। इमाम साहब ने फरमाया वो मेरा फतवा है अवाम उन्नास के लिए, और ये मेरा फतवा है अपनी ज़ात के लिए। शेख सिद्दीक अज़हरी की बात बिन वज़ीर उन लोगों के लिए जो शहर के धंधे में इसी तरह सुबह से लेकर शाम तक पैदे रहते हैं और कारोबार इसी तरह करते हैं, नफ़ा ले लेते हैं, तो मेहनत ज़्यादा नहीं करते। अगरचे इनका अपना ज़ाती रुपया था तभी तो कर रहे थे, बल्कि कभी रुपया न हो तो भी होता है। दोनों के ताल्लुकात ऐसे होते हैं ब्रोकर के और शेयर होल्डर के, जो वो ब्रोकर को कह देता है, ब्रोकर का ऊपर वाले से ताल्लुक होता है, नेट पर तो सीधा होता है, वहाँ तो आपको धन करना ही पड़ता है, उसके बाद ही आपको मिलेगा। इसलिए वहाँ आपको नहीं जानते हैं कि आप खरबपति है कि अरबपति, अमानतदार है कि शादी है, इसलिए वहाँ तो सबको अदम सीख समझ कर ही बात होती है। शेख सादी ने कहा कि सफर पूरा अच्छी तरह करना हो तो अपने बाजू में बैठे हुए को छोड़ सकते, नहीं कह रहा हूँ, शेख सादी फरमा रहे। इसलिए कारोबारी दुनिया में हर छोड़ दो, बयान नहीं है, ये सबक है। ये भी अच्छा ही है नहीं, मोहब्बत या बैठे बैठे सुन लेने का, वहीं जोड़ के चले जाने का, काले आगे बच्चे किताब खुलवा, इससे पहले खुलेगी ही नहीं, भाभी रखते था ना भी लगते था, ऐसा मतलब अच्छा बना। हज़रत मौलाना तकी साहब से बात कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ याद रखने की है, कभी कुछ जुजियात होते हैं। एक आदमी आपसे क्या करेगा, मुफ्ती साहब से सीधे सारे सवाल नहीं करेगा, एक जुजिया पहले पूछेगा, आप उसको पेश नज़र रखकर फतवा देंगे जवाब का, फिर दूसरा जुजिया लाएगा, फिर तीसरा लाएगा, हालांकि वो सब मुंसलिक है एक ही कारोबार। अब उसके बाद जब मजमूई देखते हैं तो अलग जवाब का फतवा होता है, लेकिन ये जुजिया अलग अलग करके आपसे पूछता है, और हजरत खुद समझ रहे हैं कि जब सब जुजिए जायज़ तो आप उसका नतीजा भी क्या निकला, सब जुजिए का एक कुल्लिया भी जायज़ हुआ, हालांकि ऐसा नहीं भी होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मजमुआ मिलाकर उसके अदम जवाब का फतवा भी आता है। यही कह रहा हूँ कि हर मसले में ये होता है, लेकिन जदीद मसाइल में, जदीद चीज़ों में कभी होता है कि आपसे वही चीज़ छोड़ देते हैं जो पूछने की होती है। तो ये मुफ्ती का काम है कि वो ये कहे कि आप ये भी पूछते तो इसका जवाब ये होता है, ये कहकर भी जवाब, ताकि उसको पता चले कि मुफ्ती की निगाह गाफिल नहीं हो। कभी दौड़ जाए बल्कि जवाब देना नहीं भी होता है, तो सवालात होते हैं, आप उनके जवाब जब साहिब ने पूछा नहीं है तो न दिया जाए। लेकिन पहले ही अर्ज कर चुका हूँ, फिक्र अकबर, फिक्र अफसर और फिक्र असगर। फिक्र अकबर में तो नाम तो सुना है, तो बोलो ये क्या होता है, उसमें अकाइद से बहस होती है, फिक्र अफसर में सुफिया के नाम होते हैं, और फिक्र असगर में हम बैठे हुए। कुरान और हदीस जब नाज़िल हुआ तो ये सारी चीज़ें मजमुआ तरगीब और तरहीब के साथ नाज़िल हुई, लेकिन फतावा की किताबें आप देखेंगे तो तरगीब तरहीब नहीं होगी वहाँ। काजी सनाउल्लाह पानीपती है कि माला मुंतबी के अंदर शुरू में इन्होंने अकाइद लिखे, बाकी तो किताब उर्दू से ही शुरू होता है, तहारत से ही शुरू होती है, उर्दू देखी उर्दू का भी पहला हिस्सा देखो तो वही है, तनकी वही तस्लीम फरमाया जाए, इसी पे चल रहा है। ये सब जाहिर ये है कि उन्होंने ये क्यों किया, चूँकि तसव्वुफ भी हमारे दीन का एक जुज़ है और हमारी यानी मदारिस इस्लामिया का भी एक जुज़ है। इसी तरीके से
अकाइद तो थे ही, अकाइद तो अभी भी है, लेकिन तसव्वुफ बेचारा निकल गया, अखलाकियात निकल गए। इसलिए एक तालिब इल्म ने किताब तोड़ डाली, मतलब नाज़िम कुतुब खाना ने उसको पूछा कि क्यों तोड़ी, तो कहा शुरू में लिखा है आपका अखलाकी फरीज़ा है, इसलिए अखलाक तो मेरे पास है नहीं, इसलिए इस फरीज़े को अदा करने की जरूरत नहीं, इसलिए बदमाशी की जा रही है। तो अब ये होता है कि शेख सिद्दीक ज़रीर जिस बात को कहते हैं ये आजकल कसरत से कारोबार में चलती है, उस चीज़ की यानी आम मतलब तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन अफराद को देखकर हुक्म लगाया जाएगा। एक साहब है, यहीं हमारे करीब में ही रहते हैं और इनका यही शेयर मार्केटिंग का इनका कारोबार है, तो सुबह से लेकर शाम तक मस्जिद में भी तशरीफ नहीं लाते, जुमा से जुमा ही पढ़ लेते होंगे, मोमिन सीजन में भी खैर अच्छा गुमान रखते हैं, लेकिन वही उसी पर बैठे हैं, तो समाजियात की दूसरी चीज़ों पर भी असर होता है और भी दूसरी चीज़ों का। खैर समाजियात तो मजमूई इस्लाम, इस्लाम एक पूरा मजमुआ लेकर आया है, एक निज़ाम ज़िंदगी है, इसकी कोई भी उसकी कल टूटेगी तो मजमूए पर उसका असर पड़ने वाला है, अखलाकियात में हो, अमाल में हो, घर के मसाइल में हो, सब चीज़ों में। फुक़हा तो नमाज को देखेंगे, इसलिए वो नमाज कर रहे हैं, कारोबार की जो शक्ल है उस शक्ल के अंदर वो सुबह से लेकर शाम तक मशगूल है, तो दूसरे कारोबारी भी मशगूल है, लेकिन ये ज़्यादा मेहनत नहीं करता है, इसमें मेहनत कम, अगरचे कभी खोज गई तो सारा वसूल, लेकिन आम मतलब वो इससे बचने की कोशिश करता है। इसलिए शेख सिद्दीक फरमाते हैं कि ऐसे लोग जो किसी एक चीज़ को आम नॉर्मल हालत में जायज़ कहा है, लेकिन वो उस चीज़ को अपने लिए किसी गलत चीज़ के लिए फ़ायदे के तौर पर इस्तेमाल करते, या वो शक्ल बन रही है बिआई नहीं सत्ता वाले की तरफ कि वो भी बैठा है और सत्ता देख रहा है कि फलानी चीज़ में ये कर लेते हैं और ये भी इसी तरीके से कर रहा है, तो एक शक्ल बन रही है सत्ता की। इसलिए शेख सिद्दीक ज़रीर की बात मुकम्मल रद्द नहीं की जाएगी। हज़रत मौलाना तकी साहब उस पहलू को अपनी दूसरी किताबों में जिक्र कर चुके हैं, इसलिए ये भी इसकी नफी नहीं कर रहे, लेकिन मौलाना फरमाते हैं कि जो दलील पेश की जाती है ये दलील ऐसी है कि ये कारोबार में भी पाई जाती है। सारे कारोबार अंदाजे से ही तो होते हैं, मार्केट में किसी चीज़ को देखा आपने फौरन, जैसे ये अभी बारिश चल रही है, सर्दी की चीज़ें अभी से कंपनियां तैयार कर लेती है, ये नहीं कि ज़रूरत पड़ी तो उस वक्त सर्दी की चीज़ें तलाश करो, या कंपनी में माल नहीं हो रहा है, मजदूरों ने हड़ताल की है, वो भी करेंगे, देख रहे हैं कि पैसा बाजार नहीं हो रहा है, मगर तो ऐसे मौके पर करोगे। जापान में कंपनी के साथ कारोबार करने वालों मजदूरों को इख्तलाफ हुआ, मुलाजिमीन को, जूते बनाने की फैक्ट्री थी, इन्होंने जमा जूता बनाया, हिंदुस्तान में तो उसको तोड़ देंगे, लेकिन वो हम तो बड़ी होशियार है, अपना मुल्क का नुकसान न हो और तनख्वाह भी मिले, तो जमरात जोड़ा नगले वार दिए, लाया बनाया ही नहीं तो मार्केट में जाएगा ही, एक जोड़ा तोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद जब इस तरह खत्म हुआ तो बाय को शुरू किया, लेकिन हिंदुस्तान में तो आप देख रहे हैं जिस कंपनी में मुलाजमत कर रहे हैं उसी को तोड़ने जाएंगे तो कंपनी क्या करेगी। तो अंदाजे और तखमीने जो होते हैं, ये हर अंदाजा और हर तखमीना शुद्ध नहीं होता है, सत्ता नहीं होता है, कारोबारी दुनिया में भी अंदाजे होते हैं। तो शेख सिद्दीक ज़लील ने अपने ज़माने में कुछ लोगों को ऐसा देखा होगा कि सुबह से लेकर शाम तक वो नेट पर बैठे हुए हैं और कारोबार किसी तरह का करते हैं, जिससे बहुत सारी तशबीह बन रही है सत्ता के साथ, जुए के साथ। हकीकत में तो सत्ता नहीं खेला जा रहा है, आप कारोबार कर रहे हैं, लेकिन दिन वही मिलता जुलता, कभी चीज़ों में मामूली फ़र्क से मसला बदल जाता है। हमारे मोहल्ले में चंद नौजवान थे, उन्होंने गाड़ी का धंधा करते थे, उनकी गाड़ियाँ थी और दोनों से गाड़ी चलती थी, उन्होंने किसी मुफ्ती साहब से मसला पूछा होगा, तो कंपनी को जो देती है वो सूद पर ही देती है, महिंद्रा हो या और जितनी भी कंपनियाँ हैं, सारी की सारी कंपनियाँ आप उधार ले रहे हैं, किस तरह ले रहे हैं, उनके यहाँ तय होता है नकद लो तो इतने रुपये और उधार लो तो वो चाहते हैं कि आप उधार ही लो कंपनी को, इसलिए कि आपको तो हर तरफ से बांध लिया है, हफ्ता नहीं दिया तो गाड़ी कब से कर लेंगे और आपका अगला हफ्ता भी गया और ये भी गया, इसलिए आप नुकसान में। तो अब वो तो फायदे में ही है, तो वो उधार चाहती है। अब वो ये करते हैं तो पूरी कीमत मुतय्यन कितने रुपये आपकी चीज़ की कीमत और इतने आपके हफ्ते, इंटरेस्ट आपका अलग से और ये दोनों करते हैं, और अब आप उसको खरीदते हैं। उसके मुकाबले में इस्लामी बैंकिंग जो होती है वो ये करती है पहले से ही नकद की कीमत अलग और उधार की कीमत अलग बताती है। नकद में मसलन 4 लाख है और उधार में 5 लाख है, मार्केट में भी ये चीज़ इसी तरह बिक रही है और ये भी आपके साथ इस तरह का मामला करता है।
लेकिन 5 लाख में आपने उधार मामला किया, किस्त मुतय्यन हो दिया, आपस में मामला करके। अब कोई ये कहे कि बैंक ने भी तो यही कहा था कि नकद में 4 लाख और उधार में 5 लाख, और इसमें लेकिन बैंक ने ये कहा था कि नकद में 4 लाख रुपये पूरी चीज़ की कीमत, और उधार में जब 5 लाख है तो 4 लाख तो कीमत और 1 लाख सूद, रुपये का नफा। और सरमाए पर नफा नहीं होता है, सरमायादार का नफा होता है, सरमाए का नफा, इसलिए कि वो सरमायादारी ही से बनता है। इसलिए यही कम्युनिज्म में और हमारे दरमियान फर्क है, उन्होंने वो नहीं समझा है। तो अब ये है कि मैंने उनको ये कहा कि आप इस तरीके, यानी वो मौलाना ने उनको शक्ल बतलाई थी, तो कहा मैंने हरदूत से पहले ही पहुँच देवाना नहीं पहुँचेगा। मैंने कहा यही समझना है, इसके लिए नवसात लगाए तो दोस्त ने हमारे मोहल्ले के, मैंने कहा इसीलिए। और ये मकबूल साहब हमारे जिला पंचायत वाले, तो उन्होंने इस तरीके से, मैंने कहा ये फ़र्क है, वहाँ आप 1 लाख सूद के उन्वान से दे, चाहे नौम गमे के तो पहले 4 देवा करे ना, यही 5 देवा करे। मैंने कहा यही फ़र्क है। इस्लाम ने कहा कि इस तरह करो, नफा की मिकदार बतलाओ, उसको सूद मत बतलाओ। सूद के अंदर आपको कुछ भी हुआ हो वो आपसे सूद वसूल ही करता रहेगा, और चीज़ की कीमत मुतय्यन होती है तो वो पूरी चीज़ की कीमत होती है, चाहे नकद करो चाहे उधार करो। शरीयत में इसकी गुंजाइश आप सुन चुके हैं, उधार भाव और नकद भाव में फ़र्क हो, ये जायज़ है। बेसलम किताबुल्लाह ने जो इजाज़त दी, एक तरफ किताबुल्लाह ने सूद को रोक दिया। सूद में होता क्या था, गरीब की अपनी ज़रूरत पूरी होती थी, चाहे इस्तेहसाल के साथ, मजबूरी के साथ, लेकिन उसकी ज़रूरत पूरी होती थी, इसलिए मालदार को वो अपना मकान गिरवी देता था और कोई चीज़, और वो उससे फ़ायदा उठाता था। इसी तरह सूद में भी होता था, गरीब के पास पैसे नहीं है, उसने पैसे दिए, अब इसने चाहे कारोबार में लगाए चाहे अपनी बीमार बेटी की दवाई में लगाए, कर्ज दे, सूद देने वाले को तो इससे कोई लेना देना नहीं, उसको तो सालाना सूद की शरत नहीं होता है, वो मिलनी चाहिए, वो इस तरह वसूल करते हैं। तो सूद में ये होता है। इसके मुकाबले के अंदर अब जब शरीयत मुतहरा ने सूद का अदम जवाज़ का किताबुल्लाह ने साफ फरमा दिया, बस तनीबू और इसी तरीके से सूद से भी लाता रिबा, तो अब बेसलम को जायज़ रखा। इसके पीछे दलील यही थी कि बेसलम की जवाज़ की भी दलील ये है कि बेसलम में भी उमूमन ये होता है। आप देख रहे हैं एक आदमी खेती बाड़ी कर रहा है, जुआरी है, काश्तकार के पास पैसे होते नहीं, जैसे आए तो उसमें कुछ रास्ता, अब बीच के अंदर वो मकरूज हो जाए, अब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो अब वो क्या करेगा, सूद पर तो उसका इस्लाम में जायज़ नहीं है, तो अब वो जाएगा किसी मालदार के ताजिर के पास, कहेगा कि मेरे खेत में गेहूँ है, मैं आपको गेहूँ बेचना चाहता हूँ। अब यकीनी बात है तो सामने वाला भी देख रहा है, तो ये मजबूर है, तो गेहूँ की कीमत बेसलम में क्या होगी, मार्केट में जो कीमत होगी इससे कि गेहूँ तो 2 महीने के बाद इसको अदा करेगा वो, और ये 2 महीना ताजिर के अपने 2000 रुपये 3000 रुपये जो उसने दिए वो रुपये तो ऐसे ही गए। तो ताजिर ये चाहता है कि नहीं, मुझे इसके बदले में क्या हो, जो चीज़ तू बेच रहा है वो मार्केट की वैल्यू से थोड़ी कम कीमत में, और वो भी राजी है, इसलिए उसको बाकी कोई भी सूद के बगैर पैसे देने वाला नहीं, और उसकी कोई मजबूरी है कि उसको पैसे की ज़रूरत, लड़की की शादी करानी है, और इस तरह से लड़की की नहीं लड़की की। एक साहब आए, मियाँ बीवी का झगड़ा था, फिर उसके बाद तलाक की नौबत आई, और फिर उसके बाद दोनों तरफ मौलवी, लड़का भी मौलवी, न लड़की का बाप भी मौलवी, न लड़की भी आदमी। लेकिन मसला आया कि पैसे दो उसके बगैर वरना कोर्ट में केस करेंगे। तो अब आपस में इस तरह की जो चीज़ हुई, तो लड़की के वालिद ने इत्तेफाक किया कि पहले लड़के ने मसला पूछा था कि लड़की वाले पैसे मांग रहे हैं, तो हमने कहा कि जो इनके बुनियादी खर्चे हैं उनमें जो इस्तेमाल हुआ है उसके तो दिए जाए। वो उनके वालिद आए, उन्होंने कहा मुझे 2 लाख रुपये चाहिए। कहा 2 लाख का खर्चा क्या हुआ है, वो आप मुझे ज़रा लिस्ट बना के दे दो ताकि मैं आपको बतलाऊँ कि इसमें से कितना आपको मिल सकता है। लेकिन लड़के वाले तैयार हो चुके थे 1.5 लाख, समझ रहे थे। तो खैर उसके बाद फिर इनके दरमियान मामला बाद में तय हुआ, डीप हल हुआ। लेकिन जब मैंने इनको कहा कि आप खर्चा बतलाओ, तो खर्चा कोई ऐसा नहीं था जो शरीयत एतबार से दिया जाए। कहा कि मेरी लड़की इतने दिनों से पढ़ रही है, कहा इसका खर्चा दिया जाए। लड़का तुझे छोड़ के गया था, मशहूर नहीं था, वो छोड़ के गया था, तो कितना खर्चा है? उन्होंने 10,000 रुपये कीमत लगाई। सरकार 3,000 4,000 लगाती है, तो शोहर के ऊपर लगाती, इसलिए तो सामने वाला भी तो कोई कमाने वाला हो उसको भी पूछा जाए। कुछ कमाता ना हो तो 6,000 रुपये उतारिए, कमा सकता है, इसलिए कोई शोहर मौलवी तलाक दे और ये कहे कि मेरी तनख्वाह 6,000 है या मेरी कुछ भी अभी तनख्वाह नहीं है, तो कहेंगे कि कमा तो सकता है नहीं, इसलिए दो।
कहीं से भी ला कर भी करो कि ताकत आ, मतलब मेहनत करके कहीं से भी ला कर। अब ये खर्चा ऐसा है कि जो शरीर खर्चा नहीं था, लेकिन वो बतला रहे थे, मतलब सामने वाली पार्टी मान चुकी है, मैंने कहा हमें बीच में आना नहीं है, बाकी तो ये 1.5 लाख भी मैं नहीं कहता हूँ, जो कुछ दिया है। फिर उसके बाद इन्होंने लड़की की इज्जत का खर्चा, वो भी 10,000 के हिसाब से ही गिन लिया। फिर लड़की को इन्होंने हार चढ़ाया था, उसको भी गिन लिया सोने का। मैंने कहा आपकी लड़की को दिया था मालिक बनाकर या चढ़ाया है? पता चढ़ाया है, जानते हैं कि चढ़ा, शादी के बाद देते हैं वो चढ़ाना है, शादी से पहले देते हैं वो। अब हर जगह का रिवाज थोड़े का अलग अलग संख्या के साथ है, इसको पकड़ मत लेना। इसका ताल्लुक ऊर्फ से होता है, गुजरात में जो चलता होगा वही मोतबर होगा, मणिपुर में जो चलता होगा वही मोतबर। इसलिए अब ये हुआ, मैंने कहा हमारे ऊर्फ में दिया भी जाता है और चढ़ाया भी जाता है, आम वतन चढ़ाया जाता है, इसलिए ये आपकी लड़की मालिक नहीं है। इन्होंने चढ़ाया था, इन्होंने मालिक बनाने की सलाह दी कि वरना तो दोषी अपनी बहू को सारी मार्केटिंग की नजर आई थी, लेकिन ये कभी बोली है बता नहीं, यही दलील है कि दिया नहीं है, तो उसको भी नहीं जीना चाहेगा। बात थोड़ी दूर जा रही है, मुझे ये बतलाना है कि शेख सुद्दी गज़नवी ने जो बात कही है वो कहीं कहीं कुछ मसाइल में आती है, कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के मुशाबे शक्ल इख्तियार कर लेती है। उनकी बात अपनी जगह पर सही है, ये भी मुफ्ती को याद रखना। और मौलाना तकी साहब ने आम अहवाल के एतबार से फरमाया कि ये कारोबार हो रहा है, और अंदाजे से ही तो कारोबार होते हैं, अंदाजे में भी कभी खोज जाती है। कंपनी कभी बहुत सारे पंखे AC बनाने में गर्मी ही न पड़े, या सर्दी के लिए सामान बनाती है और सर्दी ही ना आए, इस तरीके की बारिश के लिए करते हैं और बारिश ही ना आए, छतरी गलत पड़ी रहे। तो रात दिन इस तरह होता है, चाहे वो सीजनी चीज़ें हो, चाहे वो रोज़मर्रा की कारोबार की चीज़ें हैं, इसमें कभी खोट और कभी, तो ये अंदाजे ही से कारोबार करता है, अंदाजे से ही चीज़ मंगवाता है। वो समझता है कि शायद मार्केट में नकली वाला जो मदरसा बना है ये भी अंदाजे के कारोबार पड़ी हुई, इतनी लंबी चौड़ी ज़माने में ये जगह खरीदी गई। हज़रत नकली वाला ने उसकी जंग अजीम जो हुई थी 1939 से 1945 तक, तो साउथ में कारोबार कर रहे थे, पूरी दुनिया में लड़ाइयाँ चल रही थी, बड़े आकाई लड़ रहे थे आपस में यूरोप वाले, और हम लोग छूटे जाते थे, तो चुम्बर बन रहे थे एशिया वाले। तो अब ये हुआ कि इन्होंने देख लिया कि जब ये लड़ाई बंद होगी और चीज़ें इधर से उधर मिलेगी नहीं, तो चीज़ की कीमत क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इन्होंने बड़ा बड़ा पिस्तौल जो था इनके पास वो सारे गोदाम बन लिए। अब ऐसा ही हुआ, अचानक जब ये हुआ तो उसके बाद मार्केट में चीज़ें नहीं, अब यही दूसरे के पास थी, तो उसकी बरकतें भी आएगी, पढ़ने में भी है। कारोबार तो हलाल था अपनी जगह पर की नफसी, और सारा इसमें नहीं लिया है, कारोबार भी वहाँ था। तो उस मौके पर इन्होंने, उनको काफ़ी नफ़ा हुआ और उससे ये बात खरीदा गया। तो खैर बतलाना ही है कि अब कोई ये कहे कि ये तो जायज़ नहीं, हालांकि ये नहीं है, कारोबार है, आदमी अंदाजे इसी किस्म के लगाते हैं। तो मौलाना तकी साहब फरमाते हैं कि अगर अंदाजे बंद कर दो तो दुनिया में कारोबार ही होना मुश्किल है, किसी भी चीज़ का कारोबार नहीं होगा। इसलिए ये बात देखी जाए कि शरई कोई बेवसूली हो रही है जो उसके अदम जवाज़ का हुक्म लगाए, उस अदम जवाज़ का हुक्म लगाने की, तो अब चाहे अभी लिया और 2 घंटे के बाद बेच दिया, तो चीज़ों में भी कैसा होता है, आदमी एक चीज़ खरीदता है, घर वाले एक चीज़ आदमी ले आएगा, लड़ाई हुई, अब उसके बाद वापस करना है तो वापस आपकी इज्जत का सवाल है। तो किसी दोस्त को पकड़ लाओ, उसको कहोगे ले लो, ये करो, या आप कह दोगे मैंने बेच दिया, हालांकि इससे कहीं से कर्ज लेकर लिए, दुनिया आएगी लंबी चौड़ी इस तरह। तो खरीदो फरोख्त में भी ऐसा होता है, उसको भी ऐसा होता है। हम लोग सोचे थे हमारे मोहल्ले में काजी में, हमारे घर के काजी में एक साहब थे, बहुत वकील थे। अब औरतों को कुछ ज़रूरत अपनी लड़कियों के लिए भी पड़ती है, देना पड़ता है, और इस तरह की कुछ वो नहीं दे रहा था। तो हमने देखा कि हमको भी बचपन में उसने तपेली दी, और तपेली में मतलब घोड़ा वाली दुकान किया और वो दे दी। घर से गेहूँ भी जा रहे हैं, जवानी भी जा रही है, और वो दुकान पे बैठा है, वो जो भाव करे उसके हिसाब से ही दुकानदार है, इसलिए इनको कह रहे हैं। ये इस तरह ये चीज़ें क्यों होती हैं? तो अब तखमीन और ज़न एक ऐसी चीज़ है कि रात दिन इसका एतबार किया जाता है। इसलिए हज़रत मौलाना फरमाते हैं कि महज किसी को नीयत की बुनियाद पर जवाज़ और अदम जवाज़ की तफरीक को छुट्टी वजह मालूम नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता बेवसीला की शरई शराइत को मलहूज़ रखना ज़रूरी है, और उनकी रियायत न करने से सट्टाबाजी का सत्तेबा खुद ही हो जाए, उनकी रियायत करने से हो जाएगा। और वो रियायत क्या है? रिस्क का जिम्मेदार, रिस्क लेना। जब वो रिस्क ले रहा है, यानी उसने जब शेयर खरीदे, दूसरे को बेचे, फिर कहीं और से खरीदे, फिर बेचे,
ये रिस्क ले रहा है कि अगर खोद गई तो भी मैं जिम्मेदार। और शरीयत में यही है, जब एक आदमी रिस्क ले रहा है सूद के अदम जवाब में, ये भी एक बात है। बहुत सारी वजूहत है, उसमें एक वजह कहानी ये भी लिखी है कि वहाँ रिस्क नहीं लिया है। आपने किसी को 1 लाख रुपया कर्ज दिया सूद पर, अब आपको तो नहीं कहूँगा मैं कि आपने दिया, मतलब किसी ने दिया, बिल्कुल तो शरिया है। तो अब किसी ने किसी को 1 लाख रुपया सूद पर दिया, ये ले गया, रास्ते में छोड़ने चोरी कर ली, लूट लिया, या जो चीज़ खरीदी फौरन वो चीज़ डूब गई, हलाक हो गई। अब क्या करेगा सूद देने वाला? तेरा कुछ भी हो, मेरे तो 2 लाख 1 लाख और महज सूद वापसी हो। ये चीज़ क्या है? आपने कोई रिस्क नहीं लिया, पैसे तो दिए उसको लेकिन रिस्क नहीं। कारोबार में क्या होगा? रिस्क लिया जाएगा, चीज़ देंगे तो आप उसके जिम्मेदार होते हैं। इसी तरीके से कर्ज देते हैं तो कर्ज भी जिम्मेदार बनते हैं कि अदायगी इसकी की जाएगी। अब इसकी गफलत से हो गया, वो माफ़ कर दे वो अलग और माफ़ न करे तो अलग है। लेकिन सूद का मसला तो बिल्कुल ये है कि उसके अंदर आप इत्मीनान वाले, वहाँ तो इसने अपने रुपये दिए और फिर उसके बाद कर्ज दिया है, कोई नफ़ा नहीं ले रहा है, आखिरत की सवाब की उम्मीद पर दे रहा है। ये भी फ़र्क है, उसकी भी वजूहत आगे से की जाएगी। मौलाना फरमाते हैं तकीर साहब के तखमीन और कयास आराई को इसकी बुनियाद के ऊपर कुछ लोगों ने उसको हराम कहा, तो बता तो कुछ हराम नहीं है। तखमीन के नतीजे में अगर सूदी कारोबार हो रहा है, सट्टाबाजी हो रही है, उसकी शक्लें बन रही है और फिर वो शक्लें कभी बनाई भी जाती है, चीज़ की कीमत वो न हो और आप शेयर्स की कीमत ज़्यादा दो, या यानी ज़्यादा लो, और एक तो बेचने में है और एक तो ये है कि आपने देखा कि सामने इधर दूसरा मसला हो रहा है कि जल्दी से चीज़ बेच दी, तो खरीदो फरोख्त में तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन आप दूसरे से सौदा करो सत्ता के मामले, सट्टाबाजी वाला, और ये सट्टाबाजी यही कि आप किसी के साथ एक तरफा मामला करो, तो इस किस्म की जितनी चीज़ें होगी वो नाजायज़ है, तखमीन नाजायज़ नहीं है। یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ تخمین و قیاس آرائیوں سے جس کو اسپیکیولیشن کہا جاتا ہے بذات خود حرام ہے. یہ بات غلط ہے. تخمین یہ ہے کہ یہ اندازہ لگایا جائے کہ کس چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے اور کس چیز کی قیمت کم ہو رہی ہے. جس کی قیمت کم ہونے کا اندیشہ ہو اس کو بیچ دیا جائے اور جس کی قیمت بڑھنے کی امید ہو اس کو رکھا جائے. یہ بات بذات خود ممنوع نہیں. یہ تو ہر تجارت میں ہوتی ہے. جو بات ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ بیع و شراء کی شرعی شرائط کی رعایت نہ کی گئی ہو. مثلا غیر مملوک کی بیع یا غیر مقبوض کی بیع کی جا رہی ہو یا قیمار کی شکل بن رہی ہو. اب یہ عموماً اس طرح بھی ہوتا ہے. آگے اس کے بھی مسائل آتے ہیں کہ آپ نے انہوں نے ان سے شیئر خریدی، انہوں نے ان سے خریدی، انہوں نے ان سے خریدی. 8-9 آدمی تک گئے لیکن کسی کے ہاتھ میں بھی آیا نہیں. ابھی تو پہلے نے جو بیچا ان کے نام پر ہی نہیں ہوا ہے، تو دوسرے کے نام پر یہ کیسے بیچ سکتے ہیں؟ جتنے بھی لوگ تو دوسرے کو بیچ رہا ہے. اسی طریقے سے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی بہت سارا ہوئے ٹاور. آپ نے 8ویں منزل کے اوپر فلیٹ خریدا ہے، ابھی دوسری منزل ہے، اوپر 8ویں منزل ہے ہی، تو ہوا کو ہی خریدا ہے. لیکن چونکہ آپ نے سیمپل کے طور پر ایک فلیٹ دیکھ لی، اب آپ اس فلیٹ کو خرید رہے ہیں. آپ کے لیے تو خریدنا جائز ہے لیکن آپ کسی کو بیچ نہیں سکتے کیونکہ فلیٹ ہے ہی کہاں پر، تو ہوا ہے ابھی. لیکن سودے ایسے لوگوں نے کیے بھی سیل پر سیل اس طریقے سے یہ جو شکلیں چلیں. تھوڑے سال پہلے ایک مفتی صاحب نے یہی سب مسئلہ بتلایا تھا گروپ میں. تو ایک صاحب آئے، انہوں نے بمبئی میں اس طرح ٹاور میں ہی کچھ خریدا تھا. ایسا کیسے مسئلہ ہے؟ ایسا ہی آپ کا ٹاور بن چکا ہے، آپ نے جو منزل فلیٹ خریدا ہے وہ بن چکا ہے. تو کہا نہیں بنے گا. میں کہا نہ بھی بنے تو، اور نہیں بنا بعد میں 2 سال کے بعد ملے تو مطلب کے درد ہو مطلب کے درد، اس لیے انہوں نے منع کیا تھا. بے قبل القبض بھی اور بے معلوم یہ چیز کا وجود ہی نہیں. لیکن پہلے کے لیے تو استثناء کے طور پر خریدنا جائز ہے، دوسروں کے لیے جائز نہیں. لیکن مارکیٹ میں رات دن آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کسی کو پوچھو کہ ہماری فیکٹری میں مال تیار ہے، ہمارے ایریا میں پیسہ دینا چاہیے، بولیں گے یہی فیکٹری میں مال تیار ہو رہا ہے. اب آپ دھوکے میں یہی رہے کہ اس کی فیکٹری ہے، لیکن 3-4-5 آگے جا کر بیچ میں آپ نے جس سے خریدا اس سے بڑا کوئی ہے، اس سے بڑا کوئی ہے ہول سیلر، اور پھر اس طریقے سے ہوتا ہے. اب انہوں نے آپ کو کہہ دیا، آپ نے پیسے دے دی اور اتفاق سے پہلا جو بنانے والا ہے فیکٹری والا، اس کے یہاں کوئی گڑبڑ ہو گئی، آگ لگ گئی ٹوٹی کی طرف، کیا کرے گا؟ تو رات دن اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں. اس لیے شریعت مطالعہ نے یہ بے پر بے سے منع فرمایا، قبض القبض سے منع فرمایا، معلوم سے بھی منع فرمایا. تو مولانا فرما رہے کہ اگر وہ اس طرح کرے کہ جو شہر اس کے پاس آئے نہیں ابھی تو کسی کے پاس ہے
और वो ये समझ रहा है कि मैं खरीद लूँगा और इसको दे दूँगा। ये आ रहा है, इस किस्म का भी होता है। शेयर ब्रोकर होते हैं, वो कभी कभार आप उनसे कहो कि भाई मुझे फलानी कंपनी के शेयर चाहिए, तब मतलब से माई पाएगा, लगे न हो, लेकिन उसको इम्कान है, यकीन है कि मार्केट में से कहीं से मुझे मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला तो इसलिए गड़बड़ ऐसी आती है। तो ऐसे अगर वो कर रहा है नेट पर बैठकर लोगों से सौदे कर रहा है और वो खुद मालिक नहीं बन रहा है उसका, तो जायज़ नहीं होगा। मौलाना तकी साहब भी उसको बना कर रहे, शेख सिद्दीक ज़रीफ को कह रहे हैं कि चूँकि ये इस तरह के इम्कान हो सकते हैं, इसलिए पहले से वो ब्रेक लगा रहे हैं, तो वो तकवा वाला हुक्म है। फतवा मौलाना ने जो फरमाया उसी